Welcome to Samvid Samvad. The comments made by the Honorable Chief Justice of India in the context of the same-gender marriage has become the point of discussion among various sections. Today's Samvid Samvad is to have a holistic perspective on this matter. We have Anjali Ji Deshpande, Founder Secretary of Drishti Stree Adhyayan Prabodhan Kendra, and Varsha Ji, the National Secretary of Bharatiya Stree Shakti, with us to share their views on this matter. Discussing with them are Srimati Shanti Ji and Srimati Richa Ji. They are the host of the session, and I'm handing over the session to them. Namaste everyone, I'm Shanti, and let me take a minute to introduce Dr. Anjali Deshpande, MCom, BHE, PhD. She has been working since 1972 with ABVP, that is now more than 50 years. She is the founder secretary of Drishti Stree Adhyayan Prabodhan Kendra, which is a women's study center working in information, documentation, and research related to women issues. She is a member of the UGC Standing Committee who has been working on women's studies. Thank you, Anjali Ji, for being here and taking part in this conversation with us. Namaste, everyone. I am Richa. Let me take this opportunity to introduce Varsha Ji. Varsha Pawar Tavre. She is MSW, Certificate Course in Counseling. She is National Secretary of Bharatiya Stree Shakti. And the mission of this organization is women empowerment. She is also the president of ZEP, Rehabilitation Center for Children with Special Needs, Multiple Disability at Chinchwad, Pune, Maharashtra. She is also vice president of Sukh Shanti, that is a shelter home for women in distress at Mankhurd, Mumbai. She has done counseling in pre and post marriage. She's also done counseling in pre and post adoption. Various books have been published by her. Among them are Marathi poem book Manala Dar Asatanj, and the other one is Adoption, a Good News. She has her own YouTube channel called Apalam Algorithm. Dhanyavad. Namaste Varsha Ji. Let me start off the conversation by asking you whether you can tell us in brief about the issue of the same-sex marriage so that our listeners can have a better idea about it. तो ये शब्द हम गए वीक में ज़्यादा सुन रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज और whatever is happening in the Supreme Court, and everyone of us is wondering like ये अचानक कैसे आ गया, कहाँ से आ रहा है, और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी इसके बारे में है. तो पहले तो ये क्या है, क्यों है, अचानक आया कि बहुत सालों से शुरू है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो बेसिकली दिस इज पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसके ऊपर बहुत सारी पिटिशंस आई थी, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में आया है. तो सेम सेक्स like it itself says that two male or two female or those who have the natural orientation of sexual orientation for same sex are into relationship. Now ये अपने यहाँ पर पहले से था कि नहीं, तो पहले से ही था, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही थी, और अभी उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं. तो सेम सेक्स रिलेशनशिप ये पहले से थी, और उसके लेकिन उसके विरोध में कुछ ऐसे अपने यहाँ पर कानून थे जिसकी वजह से वो क्रिमिनलाइज्ड तरीके से उसको देखा जाता था. तो 2018 में जो 377 सेक्शन है आईपीसी का, उसको कैंसिल करते हुए ये पूरा सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज किया गया. तो ये डीक्रिमिनलाइज करने के लिए भी बहुत सालों से ये कम्युनिटी के लोगों की मांग थी, बहुत उनके एफर्ट्स थे उसके पीछे. इसका कारण ये था कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ओरिएंटेशन है ये बहुत नेचुरली उनमें आता है, और ये मेडिकल साइंस भी आज कहता है कि ये नेचुरली होने वाली उनके मन में निर्माण होने वाली ये भावना है. जैसे हम अपोजिट सेक्स के लिए एक नेचुरल भावना है, ये हम मानते हैं, उतना ही सामान्य, उतना ही नॉर्मल सेम सेक्स के लिए इस तरह की भावना होना
ये हम देखते हैं। मेजॉरिटी समाज में ये ना होने के कारण उसके बारे में समझ कम है, उसके बारे में इन जानकारी कम है, और इसलिए गलतफहमियां भी ज्यादा है। अगर हम सिंपल तरीके से उसकी तरफ देखें, जैसे राइट हैंड से काम करने वाली व्यक्ति हम ज्यादा समाज में देखते हैं, लेकिन जिनका नेचुरल ओरिएंटेशन है लेफ्ट हैंड से काम करना है, तो उनके लिए उनको जितना हम ऑब्वियसली ये नेचुरली है, ये लेफ्ट हैंड से अगर काम करते हैं तो उनका एक सेट पैटर्न है जिसके कारण से वो नेचुरली ही उन्हें लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज करने का की आदत हो गई है या स्वभाव हो गया है। ये जितना हम सहजता से एक्सेप्ट करते उतना ही सहजता से सेम सेक्स का जो ओरिएंटेशन है उसको भी देखना चाहिए। ऐसा इसलिए ये 377 का को खारिज करने का, डिक्रिमिनलाइज करने का कानून 2018 में आया। और तब जब आया तभी से ये चर्चा शुरू हो गई कि अब ये रिलेशनशिप एक बार एक्सेप्ट कर ली कानून ने, तो धीरे धीरे इनकी मैरिज की डिमांड भी आगे आना संभव है। और वही बीच के 4-5 सालों में शायद इसके लिए पूरी तैयारी हो रही थी, और वही अभी आगे आ रहा है। अभी ये क्यों आया है, तो स्वाभाविकतः जिस LGBTQ कम्युनिटी का ये डिमांड है कि सेम सेक्स मैरिज की हमें कानूनन सुविधा होनी चाहिए, तो बहुत सालों से ये लिव इन रिलेशनशिप टाइप के संबंधों में रहने वाले कपल जो है उनको भी ये दिक्कतें आ रही है कि वो साथ में तो बहुत साल से रह रहे हैं, लेकिन खुद का दोनों के नाम से जॉइंट नाम से वो घर नहीं ले सकते, बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते, इंश्योरेंस अगर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इंश्योरेंस निकालना है तो वो उस नाते में अभी तक ले नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सारी उनकी समस्या है, इसलिए उनका कहना है कि उनकी ये मांग है कि उनको एक लीगल आइडेंटिटी अगर मिलती है तो वो उनके लिए उनका जीवन आसान हो सकता है। ये जैसे पॉजिटिव उनके लाइफ की चीजें हैं, वैसे ही अगर इन केस ह्यूमन नेचर के कारण अगर कुछ ईगो हैसल है और कुछ इश्यूज है दो इस कपल में, और उनको अगर आगे जाकर सेपरेशन में जाना है, तो सेपरेट होने के समय पर जो वीकर पार्टनर है दोनों में से उसके भी राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, या उनमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस जैसी कोई घटना घटती है तो फिर उनको भी उसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी कारणों के कारण ये अभी सेम सेक्स मैरिज की डिमांड ये LGBTQ ये कम्युनिटी की तरफ से आ रही है। Thank you, Varsha ji. That does give us a better idea as to what is the issue that we are looking at today. Anjali ji, family has always been considered the basic and strongest unit of Bharatiya culture, which has protected us and our values. Do you think the decision of same-sex marriage will have an impact on our family system and the next generation? हेलो हेलो Yes, मैं yes, we can hear you, Anjali ji. Please go ahead. ऐसा है कि एक बार हमने फैमिली को एक्सेप्ट किया, फैमिली स्ट्रक्चर को, तो यदि एक आध पर्सन फैमिली में इस प्रकार से है कि जो इस प्रकार का शादी करना चाहता है, सेम सेक्स मैरिज, इफ इट इज विद इन द फैमिली, तो ये प्रश्न आता है। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द फैमिली इन जनरल, तो वो तो सेपरेट ही रहेंगे। तो विद इन फैमिली इस प्रकार का मैरिज यदि एग्जिस्ट करता है तो ये प्रश्न आएंगे। जिस प्रकार से हम लोग फैमिली का विचार करते हैं उसमें फैमिली फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। फैमिली यानी 3 जनरेशंस, कम से कम 2 जनरेशन, 3-4 जनरेशंस जहां अंडर शेल्टर रहते हैं, तो उसको फैमिली की डेफिनेशन इस प्रकार से है। तो जनरेशन का यहाँ प्रश्न नहीं है इफ सेम सेक्स मैरिज है तो।
तो इसलिए फैमिली स्ट्रक्चर में ये पूरे फ्रेम में, सोसाइटी के फ्रेम जो है फैमिली की, उसमें ये बैठने वाला नहीं है। पहली बात है। फैमिली के जो फंक्शंस है, जिसमें पेरेंट्स का केयर है, सीनियर सिटीजन्स का केयर है, घर के बच्चों का केयर है, ये जो बातें आती है वो इनके घर में नहीं आने वाली। दूसरी बात, यदि वो अडॉप्ट करते हैं तो एडॉप्शन में भी, यदि एडॉप्शन जो हमारे नॉर्मल नेचुरल फैमिली में होता है उस प्रकार से वो नहीं होने वाला, क्योंकि रिलेशन में माँ और पिताजी, ये जो नॉर्मल बात है वो उनके घर में नहीं रहेगी। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बाकी बच्चों में खेलने जाते हैं, बाकी उनका जो बाहर जाना है उसमें उनको ये फेस करना पड़ेगा। उनकी इस प्रकार से साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी अपने माँ बाप के क्या सेम सेक्स मैरिज के बारे में उनकी मैच्योरिटी कितनी रहेगी, ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है उनके लिए, उनकी आयु के हिसाब से। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बाहर जो उनको फेस करने के विषय है, स्कूल में है, पेरेंट टीचर मीटिंग में है, बच्चों के सामने है, बाकी बाहर और उनके मन में बाकी के नॉर्मल बच्चों की फैमिलीज और अपनी फैमिलीज, इसके बारे में उनके मन में जो एक क्या बोलते हैं, एक रिलक्टेंस रहेगा, और वो रिलक्टेंस से वो किस प्रकार से फेस करेंगे, उसके उन पर होने वाले साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, इसका भी विचार करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। फैमिली यदि जो उनकी यदि जॉइंट फैमिली है, उनके पेरेंट्स है और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, तो किस प्रकार से आगे जाएंगे ये अलग विषय होगा। उसका उसकी अलग प्रकार से मतलब एक स्टेटमेंट्स होगी, और ये एक मतलब अच्छा सा प्रयोग हो सकता है। यदि सेम सेक्स मैरिज एक्सेप्ट किया और घर में उनको एक्सेप्ट किया, तो ये अलग प्रकार से प्रयोग होगा और उसके स्टेटमेंट्स और उसके रिसर्च करने की जरूरी होगी बाद में। तो ये फैमिली के विषय में पहले तो फैमिली जनरल इंटरेक्शंस विद द सोसाइटी ऑफ दैट फैमिली, ये अलग विषय है, रिसर्च करने के विषय है, और हमारी सोसाइटी में और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरी है, क्योंकि इजीली एक्सेप्टेबल थिंग ये नहीं है। इज इट ओके? Yes. So, फ्यूचर के मुद्दे पर एक मैं एडिशन करूं, अगर आगे नहीं आने वाला है तो। Yeah. एक ही लाइन मुझे मुद्दा मुझे कहना है कि एडॉप्शन का जो अभी इशू आ रहा है ना, तो मुझे इससे लगता है कि एडॉप्शन ये पूरी इस कॉन्सेप्ट को ही, दैट इज अ चाइल्ड सेंट्रिक प्रोसीजर, तो इसलिए जो अंजलि ताई ने कहा वो बहुत सही है कि ये पूरी प्रोसीजर में पेरेंट्स की क्या नीड है, इससे भी ज्यादा ऊपर उठकर प्रायोरिटी दी जाती है चाइल्ड की क्या नीड है। सो आई थिंक entire adoption should be looked into that from that angle only. Very good. yes, Rightly very said. true, because the child will not know anything and they will step into a society where they will not be treated equally. I guess is what you're trying to say, Varshaji. Do I have it right in a synopsis? That Anjali Tai has said. Yeah. Continuing with the previous question, I would like to know with Varshaji, do you see an impact on teens and girl child as well based on this decision? Why only girl child? गर्ल एंड बॉय बोथ, आई थिंक टीनेजर्स भी है और थोड़ा जो उनके भी आगे का एज है, सबके लिए दिस इज अ ट्रांजिशन फेज. नो वन नोज व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, and in general also in a typical teenage there is a lot of confusion.
a lot of infatuation, attraction to as per your sexual orientation. So in general, what we are seeing in society is opposite sex के लिए attraction होना, infatuation होना, ये सारा हम देखते हैं, जिसको भी मान्यता नहीं है. Something which is too much साइंटिफिक नेचुरल प्रोसेस में ये होना, ये माना जाता है कि अगर आपको अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन है, मतलब समथिंग लाइक नेचुरल चल रहा है आपके लाइफ में, ये ट्रेडिशनली परंपरा से अपने यहाँ पर माना जाता है. फिर भी टीनेज में अगर किसी को इस तरह का अट्रैक्शन घर में, फैमिली में डिस्क्लोज होता है, तो उसको भी विरोध होता है और उसको भी दबाया जाता है, उसको सप्रेस होते हैं उनके वो सारी जो इच्छाएं, नीड्स है. तो जैसे अभी अंजलि ते ने कहा कि अपने यहाँ पर जिस तरह का फैमिली कल्चर है, ट्रेडिशन है, इन दैट ट्रेडिशन, इन दिस कल्चर, टू एक्सेप्ट सम सच बिहेवियर जिसमें लड़की हो या लड़का हो, सेम सेक्स के लिए अट्रैक्शन का अगर ओरिएंटेशन की एक छोटा सिम्टम भी दिखता है घर में, तो घर में बवाल उठ जाएगा. Now, because of this decriminalization of 377 of same-sex relationship, and because of the social media, because of entertainment media, अगर हम OTT प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो बहुत सारी वेब सीरीज में, प्रोग्राम्स में एक कहीं ना कहीं एक ये इस टाइप का एक कैरेक्टर इंक्लूड किया जा रहा है, और जिसमें इसको नॉर्मलाइज करने की बहुत बहुत जल्दबाजी शायद इन सारे मीडिया में वी आर विटनेसिंग इट. नाउ वी फ्रॉम अ डिफरेंट perspective can look at it in a different way, but those who have this such natural orientation will get a support in their at a mental level, that okay, this is normal, somewhere this kind of things are acceptable, are happening. अभी इसके दो तरह के परिणाम मुझे दिखते हैं कि एक थोड़ा सा सुकून है, थोड़ा सा पीस है कि आई एम नॉट एबनॉर्मल, मे बी थोड़ा डिफरेंट हूँ बट आई एम नॉट एबनॉर्मल. ये लड़के लड़कियों के मन में विचार आना, ये भी उनको एक सपोर्ट देने की के जैसी स्थिति में हो सकता है. बट एट द सेम टाइम देयर इज अ फियर, देयर इज अ कंसर्न. इसको जितना हम जनरलाइज करेंगे उतना व्हाट एग्जैक्टली इज माय सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जिनको ये कंफ्यूजन है, और आज के तारीख में आज का यूथ, टीनेजर जो भी है, एवरीवन वांट्स टू एक्सपेरिमेंट, everyone has that. Normally in the teenage you have that rebel streak in you. तो वो अगर हम उस तरह से अगर देखते हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह के रिलेशनशिप को देखा जा सकता है. ये एक कंसर्न आज की सोसाइटी में दिख रहा है और वो जायज भी है. और ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते करते वेयर एम आई गोइंग टू रीच, आज उतना सोचने की ताकत ये उम्र में नहीं है. सो मेरे ख्याल से जब तक मेडिकल साइंस इस तरह के आइडेंटिफाई करने के लिए एडवांस टेस्ट मेडिकल साइंस में जब तक नहीं आते, बहुत अनसेटलमेंट इन द टीनेजर्स एंड इन द यूथ ये देखने को मिल सकती है. Dr. Anjali, what concerns do you see if suppose this same-sex marriage is legalized, and what are the impacts, especially on the adopted children? So what concerns do you see if this is legalized? म्यूट पे हो अंजलि जी. हेलो. Yes, हाँ, yes, बोलिए. yes, Anjali, continue please. Adopted children के बारे में हम लोग यदि सोचे तो if the marriage is registered as a marriage, then necessarily their kids are adopted. Therefore, we have to think likewise.
एडॉप्शन जो उनका रहेगा, तो adopted children, as they raise in normal families and as they raise in this type of families, तो कंपैरिजन तो होगा। माँ बाप किस प्रकार से लोगों के घर में है और हमारे घर में है, ये उनके मन में जो आने वाला है उसको हम रोक नहीं सकेंगे। दे मस्ट बी स्ट्रेस्ड। छोटे बच्चे, उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा इस विषय का, तो उसका क्या कर रहे हैं इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे वर्षा जी ने कहा कि ये यदि चाइल्ड सेंट्रिक है एडॉप्शन की प्रोसीजर, तो ये चाइल्ड, उसको ये झेलने की ताकत है क्या उसके मन में, और क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, ये साइकियाट्रिस्ट कैन से, और साइकियाट्रिस्ट कैन ऑब्जर्व, क्योंकि ये एकदम नई बात है। तो मानसोपचार करने वाले लोगों ने ये कहना चाहिए कि इनके बच्चों के ऊपर किस प्रकार का एक प्रकार का आघात होगा, उसका स्ट्रेस उनको आएगा, बच्चों को, ऐसा मुझे लगता है। एडॉप्शन इज अनअवॉइडेबल उनके लिए, तो क्या करें? तो इट इज टू बी ऑब्जर्व इफ दे आर रजिस्टर्ड एज अ मैरिज, एंड आगे चलकर क्या करेंगे। One other question that raises is this issue impacting only Hindu marriages, or is it impacting other demographies also अपने society में? आपको क्या लगता है अंजलि जी? एक्चुअली मैंने जो पढ़ा है उसमें एक उत्तर में जज ने कहा है कि मुस्लिम लोगों को हम लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनके पर्सनल लॉज अलग है। तो जैसे कि मुस्लिम लोगों को कहेंगे पर्सनल लॉज अलग है, तो हर धर्म के पर्सनल लॉज अलग होंगे ही विवाह के विषय में, और इसके विषय में भी पर्सनल लॉज में ही उन्होंने उसको डाला है, ऐसा मेरा मतलब समझ है मेरी ऐसी, वैसे मैंने पढ़ा है। तो उसी न्यूज में था कि ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड टू हिंदू रिलीजन पीपल, तो ऐसा ही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैरिज, यदि मैरिज का विषय आता है तो पर्सनल लॉज अप्लाई होते हैं, तो ये यदि मैरिज का विषय आएगा तो वही रहेगा। ये सीधा लॉजिकल मुझे लगता है, इस प्रकार से उन्होंने जो दिया है। What is the central government stand on this issue? Varsha ji, can you throw some light on this? मैं भी जितना आप जितना पढ़ रहे हो उतना उतना ही मैं भी पढ़ रही हूँ। तो जो समझ में आ रहा है शुरू में, मतलब आज के दिन तक उनका जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं वो अभी डेवलप होते आ रहे हैं। शुरू में ये हमारी ट्रेडिशन नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, और हस्बैंड एंड वाइफ, मैन एंड वुमन, उसके डेफिनेशन तक ही वो हो रहा था। अभी जाकर और डीप में इसके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें अपने यहाँ पर मैरिज अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो दो तरीके से हम मैरिज अपने यहाँ पर होता है। एक है पर्सनल लॉज है, और दूसरा हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट है, पर्सनल लॉज है, और स्पेशल मैरिज एक्ट है। स्पेशल मैरिज एक्ट को सेक्युलर एक्ट भी कहा जाता है। तो जिनको अभी कोर्ट का ये कहना है कि जिनको जो सेम सेक्स कपल्स को मैरिज के लीगल बाइंडिंग में आना है तो दे कैन ऑप्ट फॉर स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन उस पर भी अभी बहुत बहस चल रही है। अभी ऐसे है कि कोर्ट में भी इतने सारे सीनियर लोग हैं जिनमें भी अभी ये क्लैरिटी पूरी तरह से एक कंसेंसस पे नहीं आ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या लॉ कह रहा है। तो आज की स्थिति में जो दिख रहा है उसमें अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि एक कानून अगर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ये सीटिंग्स हो रहे हैं एज इफ ऑन मतलब एकदम दूसरे बहुत सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रश्न अभी वो आया है सामने, और इस पर रोज लगातार सीटिंग्स लेना जरूरी है। इस तरह के एटीट्यूड से, अप्रोच से सुप्रीम कोर्ट में जो सीटिंग्स हो रही है,
उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि आपका मतलब कोर्ट का शायद ये दिशा है कि ये कानून बना के ही रहेंगे सेम सेक्स मैरिज का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये एक कानून बनाने की बात है ही नहीं। एक कानून जब ये बनेगा तब अराउंड 160 लॉज अमेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत सारे पर्सनल लाइफ में जितने भी प्रसंग आते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लीगल राइट्स है, लॉज है हमारे लिए। तो जब एक कानून ये बदलेगा तो ये इतने सारे कानून में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। दूसरी ये एक आर्ग्यूमेंट ये भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जब हम LGBTQ प्लस कम्युनिटी कहते हैं तो उनमें भी अराउंड मतलब जेंडर के ही उनके डेफिनेशन में 72 टाइप्स की कैटेगरीज उनके इसमें भी आ रही है। तो अगर इतना सारे एंगल्स देखने जाना है तो बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करने पड़ेंगे जो आज ओवरनाइट कुछ भी पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि चाहे आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर इसको मेल फीमेल को निकाल के पर्सन करने की आइडिया भी आप सोच रहे हो तो भी ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैरिज के स्पेशल मैरिज एक्ट के तरह तरह विद द हेल्प ऑफ इट these couples can get into it, but what about the उसके आगे क्या, उसके आगे अगर जो भी उनके इश्यूज है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, अगर हस्बैंड वाइफ इनमें कौन रहेगा इसका भी अभी क्लैरिटी नहीं है सेम सेक्स में। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस जैसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कोई भी ह्यूमन बीइंग में इस तरह के इश्यूज, ईगो इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, वायलेंस के इश्यूज आ सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनको कौन सा एक्ट किसके लिए लागू होगा? फिर इनमें इन दिस टू सेम सेक्स कपल हु विल बी ट्रीटेड एज हस्बैंड एंड हु विल बी ट्रीटेड एज वाइफ, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आगे जाकर आ सकते हैं। तो इसके जवाब आज किसी के भी पास नहीं है। इसी तरह से मतलब डिवोर्स है, अगर अपने यहाँ पर हस्बैंड की डोमिसाइल, जब वंस मैरिज के बाद वाइफ को हस्बैंड का डोमिसाइल शी गेट्स दैट पोजीशन, तो अभी इसमें हस्बैंड कौन रहेगा, किसका डोमिसाइल किसे मिलेगा? ऐसे भी बहुत सारे छोटे 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 इश्यूज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और उनके लिए आज की तारीख में किसी के भी पास उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है। इसलिए सेंटिमेंटली वी आर with the community who are having the sexual same sex type orientation, but at the same time when we want to get into the legalities of it, it's not going to be that simple, it's going to be very complex, बहुत सारे इश्यूज इसमें रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि ये अगर इस तरह का कोई भी एक कानून बनाना है तो वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकती, क्योंकि ये लोगों की क्या राय है, लोगों में इसके बारे में क्या चर्चा है, मत है, समाज का अभी मन क्या कह रहा है, व्हाट इज सोसाइटी में इसके लिए तैयारी है क्या, ये सारा देखने की भी जरूरत है। और उसके लिए जो समाज से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि है, जो संसद में बैठे हैं, उनकी एक पार्लियामेंट्री एक्सपर्ट्स की अगर मेंबर्स की अगर कम्युनिटी बनाई जाती है, उसमें बाहर के भी अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे, जैसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स है, सेक्सोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, और अलग अलग लीगल एक्सपर्ट्स भी है। ऐसे सारे लोगों को वो कमिटी में उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा, LGBTQ का होगा, सभी का रिप्रेजेंटेशन होने के बाद कितने सारे कानूनों में चेंजेस होने चाहिए, इसका अभ्यास होने के बाद, उसके बाद इस तरह का एक कानून अगर बनने की जरूरत है तो बन सकता है, लेकिन नॉट दिस काइंड ऑफ डिसीजन शुड नॉट बी टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट में डिस्कशन और चर्चा के बाद अगर इस पर कानून बने तो वो बेहतर होगा, ये जो मैंने समझा है। जी।
तो ये तो क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का है, बट डू यू सी एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट वर्षा जी इन सब सेम सेक्स मैरिज से? डू यू सी एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द कंट्री? ऑन द कंट्री आई डोंट नो, बट ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द कंट्री का मतलब मैं नहीं समझी। मैंने इस सवाल का मतलब मैं जो समझी हूँ, लेकिन I mean any kind of like you know beat in the people this thing, or how maybe due to some amount of population का ये हो सकता है, नहीं तो कुछ और का भी हो सकता है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? इकोनॉमी का भी हमको थोड़ा something can hit us in that end, or I mean what is the आई general thought process on that end? इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ। मुझे ऐसे लगा इस सवाल का ये मतलब है कि ये जो कपल्स इस टाइप के रिलेशनशिप में जाएंगे, जो दोज आर डिमांडिंग फॉर द लीगल परमिशन फॉर इट, उनके लिए कुछ इकोनॉमिक फिनेंशियल एस्पेक्ट्स उनके जो है, जैसे उनके पेंशन का है या उनके फिक्स डिपॉजिट का है, या साथ में मिलकर घर लेना है तो आज वो हस्बैंड वाइफ के नाते नहीं ले सकते हैं, वगैरह वगैरह जो फिनेंशियल एस्पेक्ट्स है उसमें, उस पर अभी बहस हो रही है। लेकिन इसमें भी है कि कुछ व्हील करके, पर्सनल व्हील करके भी प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस वगैरह के जो इश्यूज है, वो आज के तारीख में भी वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसे लगता है कि एक मोमेंटो जो क्रिएट होता है कभी कभी, बहुत ज्यादा उसकी एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा लोग चर्चा करते हैं, दैट डजंट मीन कि हमारी सोसाइटी में जिस तरह का हजारों सालों का पुराना जो एक ट्रेडिशन, कल्चर, रोल मॉडल्स अपने सामने है, तो उसमें विदाउट एनी natural, real, scientific reason, I don't think anyone will get into this kind of relationship just for experiment in the मतलब एडल्टहुड में जब कोई इस टाइप का डिसीजन लेने जाएगा, तो वो ये प्रमाण जितना सोसाइटी में नेचुरली है, बायोलॉजिकली नेचुरली जो है, उतना ही रहेगा। उसका आउट ऑफ प्रपोर्शन जाने की चांसेस आज तो नहीं लगते हैं, बट मे बी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इट, सो आई डोंट नो। Thank you. Anjali ji, last question from my side. Your organization, Drishti, has been working on getting data from people of India. So what kind of response are you getting? इसके प्रति उन लोगों का क्या नजरिया है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। जी अभी जो हमने किया, सिर्फ 5 ही प्रश्न पूछे थे, तो कुल मिलाकर ऐसा ध्यान में आता है कि एक जनरल पब्लिक का जो रहता है इन सोसाइटी, उसी प्रकार का डाटा मिला है। मतलब जो प्रश्न पहले पूछा था कि वेदर द सेम सेक्स मैरिज इज अ सीरियस कंसर्न, तो बहुत लोगों ने उसको हाँ कहा है। कुल मिलाकर मोर देन 80% लोगों ने उसको कहा है कि यस, दिस इज अ सीरियस कंसर्न। अचरज की बात यह है कि हमने मेल, फीमेल एंड अदर इस प्रकार से भी दिया था उसमें ऑप्शन। तो जो ट्रांसजेंडर है, या ये खुद को मेल फीमेल ना कहते हुए अदर में कैटेगरी में डालते हैं, ऐसे भी लोगों ने इसमें रिस्पांस दिया है। उसका थोड़ा और एनालिसिस करना चाहेंगे हम लोग, वो अभी काम चल रहा है। लेकिन उसको कहा है कि वेदर इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, तो कम लोगों ने इसको नेचुरल फिनोमिना माना है। मतलब व्हाट सोसाइटी थिंक्स वी हैव रिफ्लेक्टेड इन दिस सर्वे। कुल मिलाकर 27 या 28% लोगों ने इसको नेचुरल फिनोमिना माना है, तो ये हमने ध्यान में लेना चाहिए। लेकिन अदर सेक्स वाले जो लोग हैं, उन्होंने 47% इसको माना है कि ये नेचुरल फिनोमिना है।
इस प्रकार से, मतलब उनका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है। अप्रोप्रिएट है क्या है उसको लीगलाइज करने, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसको ना कहा है। दे हैव रिजेक्टेड दिस थिंग टू लीगलाइज इट। और उसमें कुल मिलाकर सभी सेक्स का परिणाम सेम है। इसमें एक अचरज की बात है कि महिलाओं ने उसको ज्यादा नकारा नहीं है। लीगलाइज करने को उनको नहीं चाहिए, मतलब उनको ज्यादा, उनका परसेंटेज नहीं के बराबर है और पुरुषों का हाँ के बराबर है। थोड़ा उसमें डिफरेंस है, हम लोग उसका और एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एडवर्स इफेक्ट्स होंगे क्या सोसाइटी पे, उसके बारे में सभी लोगों ने एडवर्स इफेक्ट होंगे इस प्रकार का अपना मत दिया है। लास्ट क्वेश्चन था कि इस प्रकार के यदि हमारे घर में या क्लोज फ्रेंड्स में या एक्सटेंडेड फैमिली में कोई करना चाहता है इस प्रकार की शादी, तो क्या है आपका मत, वेदर यू सपोर्ट इट और नॉट। तो कोई उसको, मेजॉरिटी लोग इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार का डाटा, अभी तक 5 ही क्वेश्चंस थे, डाटा अभी तक आया है कुछ कुल मिलाकर 52,327। हिंदी इंग्लिश मराठी का ज्यादा है इसमें, और अदर रीजनल लैंग्वेजेस में भी 10 रीजनल लैंग्वेज लिए थे, उनका भी डाटा इसमें इंक्लूडेड है। ऐसे अभी रिजल्ट्स अभी निकाले हैं, मतलब ये कुल मिलाकर एवरेज, अभी ये सर्वे रुकवाएंगे हम लोग और नहीं लेंगे इसमें आंकड़े, लेकिन 2-3 दिन में अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया और किया इसमें, ऐसा कुल मिलाकर रीडिंग्स है। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब एज वाइज यदि हम लोग देखें तो अलग रिजल्ट्स दिखते हैं। 18 to 25 इयर्स के लोगों के रिस्पॉन्सेस अलग है, 26 to 40 के अलग है, और 40 से 60 एंड अबाउ उनके अलग है। तो इस तरह भी उस डाटा की ओर देखना चाहिए हम लोगों ने कि यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, वो कितने लिबरल है, और एडर पीपल किस प्रकार के सोचते हैं, और बीच वाले जो है 26 to 40 उनके दृष्टि से भी ये उसको किस प्रकार से देखना चाहिए, ये तय करना चाहिए। इसमें और कुछ बहुत है उसमें कहने लायक, लेकिन वो भी अभी हमने निकाला नहीं है। Thank you, Anjali ji. That was a detailed and बहुत सारा time भी लगा होगा and effort to get the survey and Yes, the answers ready, the information. And thank you very much, Varsha ji, Anjali ji, for your time today. It was a very illuminating discussion for us to, and you threw some light on the thing. We hope to see you again discussing some other current topic.